Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So I think we can start. Grishma ma'am has started recording, right? Okay, fine. Students, so today's session that we are going to study about economics. जैसे कि economics की जब भी हम बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में ऐसा आता है कि ये सब्जेक्ट बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट जो डिफिकल्ट लगता है, जो कि है नहीं, इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए, इसको सिंपल बनाने के लिए, इसको समझने के लिए आज हम लोग ने ये सेशन रखा हुआ है। ओके, सो आई जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज पूजा पांडे and I am teaching economics for degree and degree college students as well as for PG students. Okay, so let's start with the syllabus. Like, what are the topics that we are going to cover under our ब्रिज कोर्स? ठीक है, तो अभी हम लोग जब हम ब्रिज कोर्स की यहाँ पर बात करते हैं तो ये ब्रिज कोर्स क्यों कर रहे हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में? दिस इज बिकॉज economics is a subject which is included in every course, whether it is related to a finance course or whether it is related to management or whether it is related to pure economics in arts. Okay, so whichever stream you go for, whether you go for even a mass media or if you go for specialization in accounts, whatever course you are selecting, economics is a subject which is included as a core subject in every course, which means that the subject has got some relevance and there is something in this subject that you all need to know about. सबसे पहले हम मानेंगे कि what is economics. Okay, we are going to include in our bridge course these topics. Apart from this also, we can include few more topics if you suggest. Okay, after the feedback that we receive for today. First, we are going to study what is economics. Then we are going to study what do you mean by pure science or what is social science. Okay, and why these science concepts are related in economics. Is economics a pure science or economics is a social science? उसके बाद में तुम लोगों ने 11th और 12th में पढ़ने के बाद पॉजिटिव नॉर्मेटिव ये कॉन्सेप्ट्स भी सुने होंगे, राइट? पढ़े भी होंगे, but generally we are confused with what is positive and what is this normative. पॉजिटिव तो समझो हमको पता है, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चीजें, but what is this positivity in economics? What is this normative thing in economics? So today we are going to study all these concepts in detail, ताकि हमको ये कंसेप्ट एक बार समझ में आ जाए तो इकोनॉमिक्स की कोई भी थियोरी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी थियोरी हो, वो थियोरी हम रीड करके सिर्फ समझ सकते हैं बिकॉज उसके अंदर के कंसेप्ट हमको आते हैं। देखो बहुत बार मैंने सुना है, इवन स्टूडेंट्स जो सीए लेवल कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद भी अगर उनसे पूछा जाता है समथिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, दे से ओ माय गॉड इकोनॉमिक्स बहुत डिफिकल्ट है, उसको छोड़ के बाकी कोई भी सब्जेक्ट की बात करो। मतलब what why they have that fear, वो डर क्यों है, why they are afraid of studying economics? This is because their concepts are not clear. देखो इकोनॉमिक्स को सब लोग थियोरी सब्जेक्ट समझते हैं, इट इज अ थियोरी सब्जेक्ट बट it has to be applicable. It is a subject which is applicable in reality. अगर तुम जो थियोरी में पढ़ रहे हो उसको तुम अपनी रियल लाइफ से जोड़ लो तो तुमको समझ में आ जाएगा, इसको तो रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये तो हम एक्चुअली कर रहे हैं, तो इसमें पढ़ना क्या है, ये तो समझना है। So that is why you are going to study in reality how we are using this economics. Again, जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं we always talk about some people, right? हवे में तो बात नहीं होती है, हमेशा there is a person involved in that. So whenever there's a person involved in that, it is important to understand कि if there is a person, there is definitely some kind of a person's psychology associated with it, right? अगर मैं अपनी बात करती हूँ, ठीक है, अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ और लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रही हूँ तो लॉ ऑफ डिमांड बिना मेरे ने हो जाएगा क्या या बिना तुम्हारे हो जाएगा? नहीं। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? पीपल आर डिमांडिंग लेस इफ द प्राइस हाई। मतलब अगर लोग ही ना हो तो डिमांड होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। which means economics is a subject which has to involve human beings. Without involving human beings, economics cannot work. And when we talk about human beings, it is very, very important to understand कि human beings psychology plays a very important role in that. साइकोलॉजी क्या है? हमारी मेंटालिटी है, हमारी सोच है। ये जो हमारी सोच है यही इकोनॉमिक्स की थियोरीज बनाती है। हम देखते हैं कि इतने सारे इकोनॉमिस्ट है, सो मेनी इकोनॉमिस्ट टॉकिंग अबाउट सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, राइट? और इकोनॉमिक्स बोरिंग क्यों लगता है?
क्योंकि हम सोचते हैं कि अरे इतने सारे इकोनॉमिस्ट, सब लोग अपना अपना एक थियोरी देते हैं, उसके बाद सब लोग एक डायग्राम बना देते हैं, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट सम लिमिटेशंस आल्सो. Why everybody is talking about some limitations and assumptions? देखो, assumptions and limitations are two very very important things in economics. Why this is so? क्यों होता है ऐसा? This is because अगर as a person मैं हूँ, ठीक है, I'll give you my example. अगर मैं मार्केट में जाती हूँ और मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि जिस दिन ज्यादा बारिश होती है, उस दिन जो भी मार्केट में बिक रहा है ना, वो बहुत सस्ता हो जाता है. तो ये मेरी साइकोलॉजी है कि मार्केट तभी जाना चाहिए जब बहुत बारिश होती है, क्योंकि बाकी लोग नहीं जाते. तो अगर उस टाइम पे मैं मार्केट में जाऊं तो मुझे चीजें सस्ती मिल जाएगी. तो ये मैंने जो सोचा, इसको मैं एक थियोरी बना सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी साइकोलॉजी की मैंने ऑब्जर्व किया, एक बार नहीं किया है, मैंने ये 50 बार ऑब्जर्व किया कि जब जब तेज बारिश होती है, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, इसीलिए मार्केट में चीजें सस्ती हो जाती है. तो अगर ये चीज, जो फिनोमेना मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ मार्केट में, अगर ये फिनोमेना रिपीट होता है और मेजोरिटी लोगों के ऊपर एप्लीकेबल भी होता है, तो मैं कुछ अजम्पशंस के साथ में थियोरी बना सकती हूँ. यहाँ पे अजम्पशन क्या था मेरा? यहाँ पे मेरा अजम्पशन था कि तेज बारिश जब होगी तो ही चीजें सस्ती मिलेगी और तभी मार्केट मुझे जाना है. अगर मतलब तेज बारिश नहीं हुई, मतलब थियोरी वैलिड है क्या? नहीं है वैलिड. तो अगर, तो जो लोग लिमिटेशंस लिखते हैं, अगर कुछ लोग मेरी थियोरी को क्रिटिसाइज करेंगे, तो क्यों करेंगे मेरी थियोरी को क्रिटिसाइज? क्योंकि वो लोग बोलेंगे अरे आज तो बारिश नहीं थी तो कौन सा चीजें सस्ता बिक रहा था, नहीं बिक रहा था. इसका मतलब ये थियोरी को प्रूव करने के लिए जो अजम्पशंस मैंने दिए थे, अगर वो अजम्पशंस सही नहीं बैठते हैं, तो ये थियोरी भी फेल हो जाएगी. Getting it? So economics is all about assumptions, and if somebody does not agree to me, they have the right to criticize it, and they can have their own assumptions and frame a new theory. ठीक है, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं what is microeconomics in detail. Macroeconomics में क्या क्या है, we are going to study. उसके अलावा we will also study some important concepts like what is equilibrium, okay, what is elasticity, and all these different things which are often used in economics. We are going to use that. Okay. Next, what we are going to study is this market structure in tomorrow's session. ये कल के session का syllabus है. uh, Jadhav sir, can you see the next slide of Yes, syllabus? Okay. yes. ओके, फाइन. सो नेक्स्ट टुमारो सेशन में ये सारी चीजें जो कवर होगी, उसका खाली एक ब्रीफ मैंने यहाँ पर डाला हुआ है. वी विल डिस्कस इट टुमारो, एंड विदाउट वेस्टिंग much of the time, I think we will start with our today's topic. Now this is you, okay, all the students, this is you, and this question mark is also for you, because जैसे ही ये इकोनॉमिक्स वर्ड आ जाता है, हमारे दिमाग में सबसे पहले एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क ही आता है. Why? What is this economics, and why we have to study this economics, right? So now we need to get an answer for this कि क्या है इकोनॉमिक्स. पहले इसका मीनिंग समझना जरूरी है, बराबर. अब जब हम इसकी मीनिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये कहाँ से आता है, ये वर्ड इकोनॉमिक्स कहाँ से आता है, और इसको हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों बोलते हैं. क्यों? डेफिनेटली वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर इट. सॉल्यूशन हमें ढूंढना है. प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है ना, राइट? समवन हैज सेड कि इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, डेफिनेटली देयर इज अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन है इसीलिए प्रॉब्लम है, राइट? तो अभी अगर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और क्यों होता है. देखो, you can see some people over here, okay? How many people are there? There are 4 people over here, बराबर. अब 4 people are there in this picture. What else is there? You can see there is a basket of fruits. There is a mobile phone. There are some books, right? And उसको क्या नाम दिया है? It is wants or it is a desires. Okay? वो हमारी जरूरतें हैं. क्या है वो? जरूरतें. ठीक है. और एक तीसरी चीज दी हुई है इस पिक्चर में. यू कैन सी स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द राइट, देयर इज रुपी सिंबल, राइट? और एक वहां पर यहाँ पे तुमको रिसोर्स में एक पोटली जैसा नजर आ रहा होगा कुछ. तो व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट बंच? दैट इज मे बी सम बंच ऑफ कॉइन्स. ओके, देयर इज सम, दैट इज सम वेल्थ, करेक्ट? तो अभी ये सारी चीज होती है कि नहीं इकोनॉमी में? इकोनॉमी मतलब क्या? आवर कंट्री. ओके,
ना हमारे आसपास कैन वी नॉट सी ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स? डेफिनेटली वी कैन सी। लोग हैं या नहीं है? लोग भी हैं। ये हमारी जरूरतें हैं या नहीं है? रिसोर्सेज है या नहीं है? बट इस पिक्चर में एक चीज जो तुमको ऑब्जर्व करना है वो ये है कि लोग कितने हैं? हाउ मेनी पीपल आर देयर? 4। डिजायर्स हाउ मच? यू कैन काउंट इट एज 3। बट ये डिजायर को फुलफिल करने के लिए क्या लगता है? रिसोर्स, राइट? कोई भी हमें मार्केट में फ्रूट्स हो या बुक्स हो या मोबाइल फोन हो या कोई भी चीज हो, कोई हमें फ्री में देगा क्या? विल एनीवन गिव इट? नो। Even if the person is our relative, one day he will give, next day he will say I will not give you, correct? So which means anything that we want is not free. तो उसके लिए क्या चाहिए अपने को? कब देगा अपने को कोई भी सामान? When we have the resource. But how much resource is shown there? Resource कितना दिख रहा है? Resource can be seen which is very limited compared to the people and compared to the desires. The resource which is available is very very less. इसीलिए ये प्रॉब्लम है। अगर तुम इस पिक्चर को सिर्फ ऐसे ही देखोगे तो बोलोगे हाँ इधर सब कुछ रिलेटेड है, गोल गोल घूमता है। इट्स नॉट लाइक दिस। यू हैव टू इंटरनलाइज द थिंग्स। तुमको ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों है ये इसलिए देखना है, ये इसलिए सोचना है ये प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि लोग बहुत हैं। तो नो डाउट इन इंडिया वी हैव लॉट ऑफ पॉपुलेशन, राइट? और अगर तुम लोगों से पूछोगे तुमको क्या चीजों की जरूरत है, तुमको क्या चाहिए, तो वो इतनी लंबी लिस्ट गिना देंगे कि वी वांट सो मेनी थिंग्स, वी वांट दिस एंड। तुम लोगों का छोड़, तुम अपने आप का सोचो। इफ आई विल टेक एग्जांपल ऑफ यू, ओके? इफ आई टेल यू ओके बेटा व्हाट यू वांट, टेल मी, तुमको क्या क्या चाहिए बताओ। अगर मैं तुमको फ्री हैंड देती हूँ कि तुमको क्या चाहिए बताओ, यू विल गिव मी अ बिग लिस्ट ऑफ सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। एंड सो व्हेन आई विल थिंक कि चलो मैं इनका ये जो डिमांड है वो पूरा करूँ क्या, तो पूरा कर पाने की मेरी एबिलिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास उतना पैसा अवेलेबल नहीं है। गेटिंग इट? उस चीज को खरीदने के लिए पैसा चाहिए या जो भी वेल्थ चाहिए, दैट आई डोंट हैव, वो मेरे पास नहीं है। और यही रीजन है कि दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम। अभी अगर इसका ऑपोजिट होता, मतलब अगर लोग सिर्फ 2 होते, डिजायर्स सिर्फ 1 होता और रिसोर्सेज मेरे पास 4 होते, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि ये सोल्यूशन हो जाता। बट ये बात सबको पता है कि ये जो रिसोर्स है वहां पर, ये रिसोर्स ही तो लिमिटेड है। अगर इस रिसोर्स को हम पैसा समझते हैं, रिसोर्स मतलब अगर पैसा होता है, तो ये पैसा लिमिटेड है ना। क्या रिजर्व बैंक जिसको जितना चाहिए उतना पैसा देती है क्या, कि भाई तुमको कितना पैसा चाहिए आओ और हमारे यहाँ से आके लेके जाओ? इज इट पॉसिबल? नो। रिजर्व बैंक इज नॉट सिटिंग टू डिस्ट्रीब्यूट मनी टू एवरीवन, राइट? रिजर्व बैंक क्यों बैठी है? रिजर्व बैंक इसलिए बैठी है कि भाई कौन कितना पैसा यूज कर रहा है। अगर ये कंट्री को चलाने के लिए पैसों की कमी हो रही है तो ठीक है, सो देन वी आर गोइंग टू सप्लाई द मनी, अदरवाइज नो। मतलब ऐसे ही बैठ के सबको पैसा देते रहने का काम नहीं है। ऐसे ही पैसा नहीं मिलते रहेगा सबको। पैसा कब मिलेगा? पैसा तब मिलेगा when you really feel कि there is a problem in the economy and we need to supply, correct? नेक्स्ट, इस स्लाइड में क्या दिखाई दे रहा है हमको? हाँ, इन दिस स्लाइड व्हाट वी कैन सी जनरली। अब इतने में से अगर मुझे ये जानना है कि इकोनॉमिक्स है क्या, भाई मुझे अभी तक नहीं समझ में आया व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो मेरे दिमाग में आया, मैंने रिसोर्सेज देखे, मैंने कुछ लोगों को देखा, तो मेरे दिमाग में आया कि मे बी इकोनॉमिक्स इज मनी या तो इट इज कैपिटल, राइट? सो इफ आई आस्क यू इन द क्लास, इफ आई एम आस्किंग यू इन द क्लास कि स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, तो व्हाट इज द आंसर? कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे मैम इकोनॉमिक्स इज मनी, सम विल से मैम मनी नहीं वो कैपिटल होता है, राइट? बट can you see a cross over there? I have written, is economics a study of money, accounts or finance? So I have put a cross there, correct? क्यों? क्योंकि definitely it is not money, it is not finance, but economics is the study of allocating money, of handling account and maintaining the finance of the nation. समझ में आया? अकाउंट्स डिटेल में क्या है वो तुमने कल पढ़ा, वो हम इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ते।
पर अगर तुमको इकोनॉमिक्स का नॉलेज है तो ये चीज तुम्हारे दिमाग में है कि मैं अगर कुछ लोगों का डिमांड पूरा करने जा रहा हूं, तो ये चीज पहले तुम्हारे दिमाग में होगी कि इस डिमांड को पूरा करने के बाद मेरे पास कितना रिसोर्स बचेगा और कितना रिसोर्स कहाँ से आ सकता है। जब ये थॉट तुम्हारे दिमाग में आता है, सो दैट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। सो व्हाट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स? Economics is the study of allocation of scarce resources in the most efficient manner. अभी ये एक सेंटेंस है यहाँ पर जो लिखा है, दिस इज जस्ट वन सिंगल सेंटेंस विच इज रिटन ओवर हियर, बट it's important to understand each and every word in this definition. Okay, it's very important to understand each and every word in this definition of what is economics. इकोनॉमिक्स क्या बोला है? इट इज द स्टडी ऑफ एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज एलोकेशन? एलोकेशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, एलोकेट करना मतलब जो चीज की जहां जरूरत है उसको वहां पर यूज कर पाना, यूज कर पाने की ये जो एबिलिटी, यूज कर पाने का जो दिमाग हम यूज करते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि टेक योर एग्जाम्पल। ओके, तुम्हारे पास 10 रुपीज है, ठीक है। अब तुम्हारे पास 10 रुपीज है, तुमको उसमें से एक बिस्किट पैकेट भी खरीदना है और तुमको चॉकलेट भी खरीदना है। पर चॉकलेट में तुम सोचते हो मुझे तो डेयरी मिल्क पसंद है, ठीक है। तो अब डेयरी मिल्क तुमको खाना है तो एटलीस्ट तुमको एक 5 रुपीज चाहिए डेयरी मिल्क के लिए। सस्ते से सस्ता डेयरी मिल्क 5 रुपीज का आता है, बराबर। और पर तुम सोचते हो मुझे डेयरी मिल्क के साथ पर बिस्किट भी खाना ही है, तो बिस्किट भी मिनिमम 5 रुपीज का मिलता है, राइट। अगर तुमको 5 रुपए का डेयरी मिल्क खाने में मजा नहीं आता, तुमको कम से कम 10 रुपीज का तो चॉकलेट लगता ही है खाने के लिए, अदरवाइज यू डोंट फील सेटिस्फाइड। तुमको लगता है कि मुंह में गया क्या पता भी नहीं चला। 5 रुपए का तो इतना छोटा है, तो वी आर नॉट गेटिंग एनी सेटिस्फैक्शन आफ्टर ईटिंग दैट। तो तुम सोचते हो कि कम से कम 10 रुपए का तो डेयरी मिल्क खाना चाहिए, बट है तुम्हारे पास टोटल 10 ही रुपए। तो इस टोटल 10 रुपए जो तुम्हारे पास है उसमें तुमको ये दोनों चीज खरीदनी है। तो क्या तुम इसके लिए अपने पेरेंट्स के पास जाके दिमाग खाओगे क्या कि अब बताओ मैं कैसे करूं? नहीं, क्योंकि तुमको पता है पेरेंट्स और पैसा देने वाले नहीं है। जो करना है मुझे इस 10 में ही कम करना है, बराबर। तो तब जो तुम दिमाग लगाते हो कि चलो जाने दो, 10 वाला नहीं, कॉम्प्रोमाइज करके 5 रुपए वाला डेयरी मिल्क ही हम खा लेते हैं और उसके साथ एक 5 रुपीज का बिस्किट पैकेट भी ले लेते हैं। तो ये जो तुमने दिमाग लगाया कि तुम्हारे पास जो रिसोर्स था वो बहुत कम था, लिमिटेड था, पर फिर भी उसको तुमने यूज करके अपना जो सेटिस्फैक्शन लाने का आइडिया लगाया, दैट इज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स पढ़े बिना भी सबको इकोनॉमिक्स का दिमाग लगाता है। Everybody has this common sense, so that is why this is a common sense subject. So I hope you all are understanding what is economics. हमारे पास जो भी चीजें हैं, जरूर अब ये रिसोर्स इधर पैसा था तो मनी को एलोकेट कैसे करने का ये हमने दिमाग लगाया। पर अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। मम्मी ने घर में मैगी नूडल्स बनाया है, ठीक है। मम्मी हैज मेड मैगी नूडल्स, पर मम्मी ने एक ही क्यूब मैगी नूडल्स बनाया है सोच के कि यू विल ईट। बट तुम खाने बैठ रहे हो उस टाइम पे योर सिस्टर कम्स फ्रॉम स्कूल। ओके, तुम्हारी बहन भी आ जाती है स्कूल से। अब तुम अकेले खा नहीं सकते बिकॉज योर सिस्टर ऑल्सो वांट्स, पर घर में एक ही क्यूब मैगी बचा हुआ था, अब क्या करेंगे? सो व्हाट वी डू, हम लोग क्या करते हैं, उस मैगी से थोड़ा सा मैगी निकाल के अपने सिबलिंग को भी दे देते हैं। तो ये क्या किया हमने, रिसोर्स को बांटा ना। ऑफ कोर्स रिसोर्स को बांटने पे तुमको मन में दुख हुआ रहेगा कि अरे मैं पूरा खाने वाली थी, अभी मुझे थोड़ा ही खाने मिला, बाकी का देना पड़ा, तो सेटिस्फेक्शन थोड़ा कम हो गया। बट स्टिल उसको एलोकेट किया ना तुमने, एडजस्ट किया ना तुमने। तो ये जो हम करते हैं ना रिसोर्स को एडजस्ट, तो अभी यहाँ पर रिसोर्स क्या था, मैगी, करेक्ट। तो जब भी हम रिसोर्स को एडजस्ट करते हैं, मैनेज करते हैं, all this managing the resource is nothing but this is economics. Getting it? So economics का definition I hope everybody, so then I will take
इन इकोनॉमिक्स। ओके, इकोनॉमिक्स में अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो तुमको और समझनी है। बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, पर नेक्स्ट क्या है हम देखते हैं। व्हाट इज रिटन ओवर हियर? टाइम वंस गॉन नेवर कम्स बैक, right? This is very true. Time is gone and it will never come back, right? Every day you can see the same time, but that is a different day, correct ना? So यहाँ पे क्या एक important चीज है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पिक्चर में तुमको दो चीजें दिखाई दे रही है। Two things that you can see in this picture. There are some books over here, correct? And on the right hand side, what you can see? You can see a car and you can see a nice building. Okay, nice historical kind of a place you can see. Okay, something where you can roam around, correct? तो यहाँ पर ये दो पिक्चर्स के बीच में तुमको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। व्हाट इज इट रिटन? सपोज यू हैव टू ऑप्शंस, ठीक है? सपोज तुमको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं। क्या है दो ऑप्शंस? फर्स्ट ऑप्शन इज यूज मनी टू स्टडी एंड बिल्ड योर करियर, एंड सेकेंड ऑप्शन इज यूज योर मनी टू एंजॉय द वर्ल्ड टूर। मतलब तुम्हारे सामने दो ऑप्शंस हैं। अभी क्या दो ऑप्शंस हैं तुम्हारे आगे? तुम्हारा दो ऑप्शंस यहाँ पर ये है कि या तो तुम पढ़ लो अच्छे से, तुम्हारे पेरेंट्स के पास जो पैसे हैं जो तुम्हारे पढ़ाई के लिए रखे हुए हैं, तो तुम या तो पढ़ लो उससे अच्छे से, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम वो पैसों को यूज करके मस्त घूमो जाके वर्ल्ड टूर। यू कैन गो फॉर अ वर्ल्ड टूर एंड यू कैन रोम अराउंड नाइसली, करेक्ट? तो अभी तुम्हारे पास ये दो ऑप्शन है। यहाँ पर हर एक का मेंटालिटी अलग अलग है, करेक्ट ना? हर एक का मेंटालिटी अलग अलग है। दोनों सब लोग अपने अपने हिसाब से सोचेंगे। किसी को लगेगा नहीं बाबा, पढ़ना इम्पोर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अभी भी पढ़ा नहीं तो फिर बाद में क्या होगा? बाद में तो घूम के फायदा नहीं है। When we want a job, टेल कि किस बेसिस पे तुमको जॉब मिलेगा, भाई तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है, तुमने कितना तक पढ़ा है। तो व्हेन आई विल से कि पढ़ने के टाइम पे तो ना मैं वर्ल्ड टूर गया था, घूमने गया था मैं, तो पीपल विल से नाउ आल्सो यू गो, अभी भी जाओ और वर्ल्ड टूर ही एंजॉय करो, बिकॉज हम लोग उसी इंसान को जॉब देंगे जो कि यहाँ पर कोई टैलेंट लेकर आएगा, करेक्ट? सो उस टाइम पर, एट दैट टाइम, इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मुझे ये दो ऑप्शंस में से जो चीज मुझे लगती है मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो मुझे सिलेक्ट करना है। सो व्हाट विल आई डू देन? अगर मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है, एक बड़ा बिजनेस एम्पायर है, तब तो मैं वर्ल्ड टूर कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड टूर करके आने के बाद भी मेरे पेरेंट्स के पास बहुत पैसे होंगे, वो मुझे अपने बिजनेस में accommodate कर देंगे। they will accommodate me in the business, right ना? वो लोग बोलेंगे तू घूम क्या बेटा, अपना इतना बड़ा बिजनेस है, जो तू काम तो कभी भी कर सकता है। पर अगर मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स के पास बहुत लिमिटेड पैसे हैं, वो पैसों से या तो मैं पढ़ाई कर सकती हूँ या तो घूम सकती हूँ, उसके बाद पैसे खत्म हो जाएंगे। तो बट ऑब्वियस, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? द क्वेश्चन इज ऑफ चॉइस। अब ये टर्म भी तुमने सुना होगा ना पहले, चॉइसेस, स्केर्सिटी, ये सब सारे टर्म सुने होंगे। तो देखो हम धीरे धीरे एक एक टर्म से दूसरा टर्म को लिंक कर रहे हैं। हमने इकोनॉमिक्स क्या है पढ़ा ना? इट इज द स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, राइट? अब जब रिसोर्सेज स्केर्स है, मुझे पता है, इसीलिए ये क्वेश्चन आता है ना चॉइस का। मुझे मालूम है मेरे पास लिमिटेड चीजें हैं, सो एट दैट टाइम जब मेरे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, मुझे हमेशा हर चीज में चॉइस करना जरूरी है। सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इट इज ऑल अबाउट मेकिंग राइट चॉइस ऑफ रिसोर्सेज एट द गिवन टाइम। अभी इस टाइम पे अगर मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो मैं घूम लूं या तो पढ़ लूं, करेक्ट? तो इस टाइम पर मेरा सही ऑप्शन मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं हूं उस जगह पे, ये एग्जाम्पल अगर मेरे लिए है, तो मुझे अगर सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगी? आई विल सिलेक्ट स्टडिंग। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि आई शुड सिलेक्ट स्टडिंग, बिकॉज अगर मैं पढ़ लूंगी, डेफिनेटली आई गेट अ गुड जॉब, एंड आफ्टर द गुड जॉब आई कैन एनी टाइम गो फॉर अ वर्ल्ड टूर। बराबर? आज मैं पढ़ लूंगी
और सही टाइम पे मैं डिग्री ले लूंगी तो मुझे एक अच्छी जॉब मिलेगी, तो मैं कभी भी घूमना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आज जो एज में मुझे पढ़ना चाहिए, अगर पढ़ाई छोड़कर मैं घूमने गई, जबकि मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स के पास उतना पैसा भी नहीं है कि मेरे लिए कोई बड़ा बिजनेस खड़ा कर दें, तो वर्ल्ड टूर पे जाना ये एक रॉन्ग डिसीजन होगा मेरे लिए। करेक्ट। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि द ऑप्शन दैट यू सिलेक्ट, तुम अपने हिसाब से अपना जो डिसीजन लेते हो वो तुम्हारा ऑप्टिमल चॉइस होता है। गेटिंग? दैट इज योर ऑप्टिमल चॉइस, दैट इज योर बेस्ट ऑप्शन। करेक्ट। क्योंकि तुम जो भी डिसीजन, अभी यहाँ पे कोई बच्चा होगा जो बोलेगा नहीं मेरे हिसाब से तो मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा क्योंकि मैं अभी यंग हूँ, अभी तो मुझे घूमने का मजा आता है, अगर मैं अभी नहीं घूमा तो बाद में क्या करूँ घूम के, बाद में तो घर संभालना है, बाद में तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना ही है, तो मुझे अभी घूमना ठीक लग रहा है। तो अगर कोई बच्चा यहाँ पर वर्ल्ड टूर पे जाना ये ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो ये भी उसका ऑप्टिमल चॉइस है। सो इट डिपेंड्स एंड इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये हर एक इंसान से डिफर करता है। जैसे मुझे पूछा तो मैं बोलूंगी मैं पढ़ाई करने वाली हूँ, और अगर किसी और से पूछा तो उसका चॉइस भी अलग हो सकता है। सो चॉइसेस आर डिफरेंट बिकॉज आई टोल्ड यू समथिंग अबाउट साइकोलॉजी, राइट? आई टोल्ड यू समथिंग अबाउट साइकोलॉजी। मतलब इंसान का जो साइकोलॉजी है वो अलग अलग है, हर एक बंदे का सोच अलग अलग है। करेक्ट ना? तो इसी वजह से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट everyone will make a choice, everyone will make a choice according to their own wishes. Okay, fine. So it is very important to understand the next important thing कि इसमें से दो important चीजें समझ में आ रही है। What are the two important things in this? One is opportunity cost and one is foregone benefit. Correct? Now one is opportunity cost and one is foregone benefit. अभी जब हम यहाँ पर बात करते हैं इस एग्जाम्पल की जो तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है, इफ यू सिलेक्ट दिस ऑप्शन स्टार्टिंग, देन क्या होगा, देन तुमको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, वर्ल्ड टूर। एंड सेकेंडली अगर तुम वर्ल्ड टूर को सिलेक्ट करो, तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा स्टार्टिंग। गेटिंग? एंड वाइस वर्सा, इसीलिए वहां पे क्या लिखा हुआ है, एंड वाइस वर्सा। क्योंकि जो भी ऑप्शन तुम सिलेक्ट करते हो, whatever option you are, that option becomes your choice, and the option that you don't want to select, maybe next time you want to select, that will become your opportunity cost. Getting it? जो भी ऑप्शन तुम अभी सिलेक्ट करते हो वो ऑप्टिमल चॉइस है, और जो ऑप्शन तुम अगली बार के लिए छोड़ देते हो या जब अभी नहीं करना है, दैट बिकम्स this one. Okay, so now there's a video that you need to watch. Okay, now there's a video that you need to watch, and okay, एक वीडियो है, आई होप प्ले हो, देन यू कैन डिस्कस फर्दर। If it's not playing, then we will move further. Don't worry. Is the video playing? No, ma'am.
So then we can move to the next slide. Okay. Okay. Can you see the next slide? Yes, ma'am. Okay. पूजा मैम वो So वाली स्लाइड में आप वापस जा सकते हो क्या, क्योंकि वो प्ले हुआ था. हुआ था क्या? Okay. या Okay. अभी स्टार्ट हुआ है. अगर 2-3 सेकेंड में स्टार्ट हुआ तो ठीक, अदरवाइज आई विल गो विद द नेक्स्ट वन. Is it playing? हुआ क्या प्ले? नहीं मैम. Okay, ठीक है, कोई बात नहीं. I'll send this video later on. You can see. Okay. Coming to next. It is a very small video. एक animated video है जो हमने डाला था समझने के लिए कि scarcity क्या है. You all can watch that video later also. Don't worry. It's not a problem. Coming to the very very important thing, this positive and normative. क्या है ये positive and normative? पॉजिटिव तो हम बहुत बार ये वर्ड यूज करते हैं, बट नॉर्मेटिव ये वर्ड हम यूज नहीं करते. सो मुझे जानना है कि ये नॉर्मेटिव क्या होता है और मुझे ये जानना है कि पॉजिटिव क्या होता है. करेक्ट. तो नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल. अभी यहाँ पर जो लिखा है उससे एक्चुअली समझना आसान है. व्हाट इज पॉजिटिव एंड व्हाट इज नॉर्मेटिव. एक्चुअली व्हाट इज रिटन हियर इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. क्या बोला है? पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव मतलब व्हाट इज, कोई भी चीज कैसी है. सिर्फ जब हम इसके बारे में बात करते हैं, दैट इज मीनिंग ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. ओके. बट समटाइम्स वी आर स्टडीइंग सर्टेन थियोरीज. कभी कभी हम लोग कुछ ऐसी थियोरीज पढ़ते हैं जिसमें ना वो लोग बताते हैं कि चीजें ऐसी होनी चाहिए. पीपल शुड बिहेव लाइक दिस. करेक्ट. सो जब कोई स्टेटमेंट होता है, एक नॉर्मल स्टेटमेंट होता है, तो दैट स्टेटमेंट इज जनरली विदाउट एनी वैल्यू जजमेंट्स. वो स्टेटमेंट कैसा होता है? दैट स्टेटमेंट इज अ वैल्यू is a statement is without any value judgment. But if people are giving statements after judging it, after thinking on it, क्योंकि वो लोग अपने हिसाब से स्टेटमेंट्स देते हैं, तो तब वो नॉर्मेटिव बन जाता है. अभी एक जल्दी से एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग ये समझने के लिए कि क्या रहता है पॉजिटिव और क्या रहता है नॉर्मेटिव. फॉर एग्जांपल आई से द स्काई इज ब्लू. ओके. और इफ आई से the leaves of the tree are of green color. The leaves are green in color. अगर मैं बोलती हूँ पत्तियों का कलर हरा होता है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है. करेक्ट. क्योंकि पत्तियों का कलर हरा ही होता है. लीव्स आर ग्रीन इन कलर ओनली. आई नो दैट. एवरीबडी नोज दैट. एंड इट्स ट्रू ना. तो nobody can say no, leaves का color is black. Nobody can say that. Everyone will agree to that कि yes, the leaves color is green when they are fresh. हाँ, of course जब वो dry हो जाएगी तो उसका color brown ही होगा. जब वो decay हो जाएगी तो उसका color black भी हो सकता है. Correct? But otherwise the leaves are green in color. Everybody knows, and the sky is blue. Okay? Now, if I say the leaves color should have been red. अगर मैं बोल रही हूँ कि लीव्स का कलर ना रेड होना चाहिए, तो एक दूसरा इंसान बोलेगा नहीं नहीं एक्चुअली ना लीव्स का कलर ब्लू होना चाहिए. तो ये क्या है? अगर मैं बोल रही हूँ लीव्स का कलर रेड होना चाहिए, कोई और बोल रहा है लीव्स का कलर ब्लू होना चाहिए, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग अपने हिसाब से बोल रहे हैं. करेक्ट. तो अपने हिसाब से बोल रहे हैं तो हर एक का अपना अपना दिमाग है. एवरीबडी हैज देयर ओन चॉइस ना टू से समथिंग. सो कैन वी स्टॉप देम
नो, बट इट डिपेंड्स ऑन अस. अगर तुम मेजोरिटी लोगों से फिर एक सर्वे करके पूछोगे कि व्हाट डू यू थिंक, लीव्स आर ग्रीन और लीव्स शुड बी रेड और ब्लू, तो लोग बोलेंगे हरा है ना, तो हरा ही रहना चाहिए, बिकॉज ग्रीन गिव्स यू मोर peaceful environment rather than having red. Correct? Red stands not for peace, right? Red doesn't stand for peace. In fact, red stands for anger. तो अगर इमेजिन करो सारी पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो हरे के जगह पे लाल होती तो कैसा होता, यू नो. ऑल रेड शोज एंगर एंड टेम्पर मोस्टली. सो यू नो, थिंग्स वुड चेंज. अगेन, इफ आई से सबसे बेस्ट फ्रूट अगर इस पूरे वर्ल्ड में है तो वो है मैंगो. तो अगर मैं बोलती हूँ द बेस्ट फ्रूट इज मैंगो, तो सारी दुनिया हाँ बोलेगी क्या? एवरीबडी विल से हाँ, बिकॉज पूजा पांडे हैज सेड कि द बेस्ट फ्रूट इज मैंगो, सो एवरीबडी हैज टू अग्री, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स की टीचर है और उन्होंने जो बोला है वो सच है, तो सबको मानना ही पड़ेगा. इज इट? बिल्कुल नहीं. इवन इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज गोइंग टू कम एंड से कि द बेस्ट फ्रूट इज मैंगो, nobody will agree, because people will say nahi, the best fruit is apple, somebody will say the best fruit is banana, somebody will say the best fruit is chiku. तो क्या है, जब हम ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं ना, तो ये वैल्यू बेस्ड स्टेटमेंट्स हैं. ये मेरा ओपिनियन है और सारे लोग मेरे ओपिनियन के हिसाब से अग्री नहीं करेंगे. तो इसीलिए क्या होता है ना, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं और वो लोग अपने अपने हिसाब से अपनी थियोरीज देते हैं. तो इसीलिए कुछ थियोरीज मार्केट में एप्लीकेबल होती हैं, कुछ थियोरीज एप्लीकेबल नहीं होती हैं. और जो लोग ऐसे हैं ना, जैसे कि इफ आई सेड मैंगो इज द बेस्ट फ्रूट, ओके, बट इफ मैंगो इज नॉट बेस्ट अकॉर्डिंग टू अदर्स, दे विल क्रिटिसाइज ना. वो लोग बोलेंगे हम प्रूव कर सकते हैं मैंगो से बेटर है चिक्कू. तो जो चिक्कू के सपोर्टर्स होंगे वो थियोरी को सपोर्ट करेंगे कि हाँ उसकी थियोरी बराबर है. जो मैंगो पसंद करते होंगे वो मैंगो की थियोरी को सपोर्ट करेंगे. करेक्ट? तो ये होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कैसे करना चाहिए चीजें, व्हाट द थिंग्स शुड बी, पीपल आर टेलिंग, राइट? जैसे कि अगर हम अभी इकोनॉमिक्स का एग्जांपल ले लेते, एब्सोल्यूट इकोनॉमिक्स का एग्जांपल, जैसे कि कमिंग टू द थ्योरीज, तुमने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी है ना, तो मार्जिनल यूटिलिटी का थ्योरी एक पढ़ा होगा तुम लोगों ने. सो मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी में क्या है ना, डोंट प्ले दिस वीडियो, ओके, आई डोंट थिंक वो प्ले होगा, मत प्ले करो उसको. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एग्जांपल में यहाँ पर क्या है, यू विल ऑब्जर्व कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी में जो मेजरमेंट यूज किया हुआ है, किसने दिया है? यूटिलिटी थियोरी. यस, utility theory has been given by which economist? It's Alfred Marshall, right? Now in this theory Alfred Marshall says कि ये जो हमारा थियोरी है, it has got cardinal measurement, correct? और कार्डिनल मेजरमेंट के हिसाब से उसने बताया कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, बराबर, 1 2 3 4 यूटिलिटी हम मेजर कर सकते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है. So there was another economist called as J.R. Hicks. J.R. Hicks ने बाद में क्रिटिसाइज किया उनकी थियोरी को और उन्होंने बोला बिल्कुल भी नहीं, वो ऑर्डिनल टर्म्स में मेजर होता है, कार्डिनल मेजरमेंट जैसा कोई चीज होता ही नहीं है. देयर इज नो थिंग कॉल्ड एज कार्डिनल मेजरमेंट. सो व्हाट हैपेंड, दैट वाज अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ओके, दैट स्टेटमेंट दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड वाज नॉर्मेटिव. इसके वजह से फाइनली वो थियोरी को क्रिटिसाइज किया, कुछ लोगों ने थियोरी को अग्री भी किया, बट द पीपल हु डिड नॉट अग्री टू दैट हैव क्रिटिसाइज्ड इट आल्सो. गेटिंग इट? तो थियोरी क्रिटिसाइज क्यों होती है, समझ में आया? अगर मुझे सामने वाले की जो बातें हैं वो मैं डिसएग्री करती हूँ उससे और मुझे लगता है कि उसके बदले मेरे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट अजम्पशंस है जिससे कि मैं ये प्रूव कर सकती हूँ कि उसने जो बोला है वो गलत है, तो मैं अपनी थियोरी बना सकती हूँ. तो हम लोग क्यों पढ़ते हैं यूटिलिटी थियोरी? क्योंकि सबसे पहले उसी ने बताया कि हम अपना सेटिस्फैक्शन जो है वो मेजर कर सकते हैं. पर अगर किसी को लगा मेजर नहीं कर सकते तो उसने इनडिफरेंस कर्व का थियोरी दिया बताने के लिए कि कैसे मेजर किया जा सकता है ऑर्डिनल टर्म्स में. तो एक के बाद एक थियोरीज जो हम पढ़ते हैं, दे आर ऑल लिंक्ड, दे आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर. व्हाई? बिकॉज if some economist is able to explain in a better manner, we will listen to that economist. जो भी इंसान सॉरी
बेस्ट तरीके से एक्सप्लेनेशन देता है, हम उसकी थियोरी को ज्यादा एक्सेप्टेबल मानते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल कि व्हाट इज दिस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज नॉर्मेटिव। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एग्जांपल है तो वो ये है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सेज कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा पार्ट ऑफ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो फर्म्स के बारे में बात करता है। सो दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, क्योंकि कोई भी लॉ इस पूरे इकोनॉमिक्स में ये प्रूव नहीं कर सकता कि माइक्रो इंडस्ट्री को एक्सप्लेन करता है, वो हर जगह फर्म को ही एक्सप्लेन करता है। सो दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। गेटिंग? सो जनरली ये जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं वो फैक्ट होते हैं, वो ट्रू ट्रू प्रूव होते हैं हमेशा, इसीलिए उनको पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोला जाता है। ओके, फाइन। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू माइक्रो एंड मैक्रो, कि क्या है माइक्रो, क्या है मैक्रो, ये सारी चीजें अब हम समझ लेंगे। सो see here, very simple, I have written very less actually। लिखने के लिए we have lot of things, we can have so many different things in it, but we have to understand concept। हमको कोई यहाँ पे 10 मार्क का आंसर नहीं लिखना है, we just have to understand एक वर्ड में चीजों का मीनिंग क्या, राइट? व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो का वर्ड जो है उसी से समझ में आता है स्मॉल, राइट? एंड मैक्रो का मतलब होता है समथिंग लार्ज। When you talk about microeconomics, it talks about individuals, it talks about agents, right? It talks about firms, it talks about markets. तो यहाँ पे इसके अलावा भी और भी चीजें हैं, but we have just summarized it and we have written। मतलब अगर मेरे अकेले के बारे में, मेरा अकेले का बिहेवियर इन द सेंस, अगर मैं मार्केट में जाती हूँ तो पैसे खर्च करने के लिए मेरा बिहेवियर कैसा है, मैं कौन सी चीजों पे कितना पैसा खर्चा करती हूँ, सिर्फ मेरा बिहेवियर देख रहा है कोई, दैट इज एन इंडिविजुअल बिहेवियर, करेक्ट? मेरे जैसे ही बाकी के इंडिविजुअल्स भी सेम बिहेव करते हैं, तो दैट बिकम्स एन इंडिविजुअल बिहेवियर एप्लीकेबल फॉर ऑल, इसीलिए जनरलाइज। जैसे कि मैंने बोला, अगर there's a heavy rainfall, if there's a heavy rainfall taking place outside, okay, and the vegetable seller, okay, and the vegetable seller has come to sell the vegetables, and the vegetables are very cheap also, but the vegetables are leafy vegetables, right? vegetables कैसे हैं? leafy vegetables हैं। तो लोग लेंगे क्या? सस्ता है तो बहुत सारा leafy vegetables, बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे लोग? the reason is, people will say that बिल्कुल भी हमें भाजी लेके फायदा नहीं है, इतना सारा वेजिटेबल्स लेकर फायदा नहीं है। द रीजन इज कि इट विल गेट रॉटेंड, इट विल गेट डिकेड। तो ऐसी सस्ती भाजी खरीदना अक्लमंदी नहीं है, एवरीबडी नोज दैट। और जब सबको ये फैक्ट पता है तो डेफिनेटली दे विल नॉट गो एंड बाय। तो क्या होगा, यहाँ पे चीजें सस्ती थी फिर भी किसी ने नहीं खरीदी, तो ये लॉ सबके लिए एप्लीकेबल हो गया, राइट? कि सस्ती होने के बावजूद चीजें लोगों ने खरीदी नहीं। क्यों नहीं खरीदी? दिस इज बिकॉज वो जो कमोडिटी है उसका नेचर कैसा है, इट इज अ पेरिशेबल कमोडिटी, राइट? खराब होने वाली चीज है, टिकाऊ नहीं है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई इवन इफ सच गुड्स विच आर कॉल्ड एज इंफीरियर गुड्स, राइट? ऐसी गुड्स को, ऐसी कमोडिटीज को क्या बोलते हैं हम लोग? इंफीरियर गुड्स बोलते हैं, जो कि सस्ती बिकती हैं, उसके बावजूद उसका जो डिमांड होता है वो बहुत कम होता है। बिकॉज हर एक के पास एक कॉमन सेंस है कि सस्ता लेने का फायदा क्या है जब वो टिकेगा नहीं, करेक्ट? और अगर हम बहुत सारा लेके रख लेंगे तो एवरीडे वी कैन नॉट ईट द सेम थिंग, राइट? एवरीवन नोज कि सबको, सबका टेस्ट प्रेफरेंस डिफर करता है। एवरीबडी वांट्स एवरीडे समथिंग न्यू एंड टेस्टी, राइट? अगर मम्मी रोज रोज स्पिनाच खिलाएगी तुमको, राइट? अगर रोज रोज पालक खिलाएगी तुमको तो तुम बोर हो जाओगे ना। रोज रोज छोड़ो, सुबह का शाम, शाम का सुबह, 2 दिन भी कंटिन्यूस खिलाया या एक दिन भी सुबह शाम दोनों टाइम वही खिलाया, तो यू विल गेट फेड अप, राइट? यू विल से नो, आई डोंट वांट टू ईट एनी मोर बिकॉज मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। तो एवरीबडी वांट्स वैरायटी। तो इसीलिए जब हम इंडिविजुअल्स का बिहेवियर पढ़ते हैं, राइट, इंडिविजुअल फर्म का बिहेवियर पढ़ते हैं, इंडिविजुअल मार्केट का नेचर पढ़ते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोला गया है? स्लाइसिंग मेथड। मतलब यू हैव टू स्टडी इट माइन्यूटली, हिस्से के अंदर और हिस्सा कर करके हर एक चीज को एकदम माइक्रोस्कोपिक व्यू से हमें समझना है और पढ़ना है। नेक्स्ट आता है मैक्रो। मैक्रो इज ऑल टॉकिंग अबाउट द एंटायर इकोनॉमी। मतलब ना, इंडिविजुअली तो हमको पता है लोग कैसा करते हैं,
बट हमको अगर पूरे देश के बारे में सोचना है, देश और दुनिया के बारे में सोचना है, तो इट इट रिक्वायर्स अ मैक्रो व्यू। अभी तुम सोचते होगे कि क्यों है भाई ये ऐसे, मतलब माइक्रो पढ़ लिया तो काफी है ना, इतना मैक्रो पढ़ने का फिर क्या जरूरत है? तो जरूरत है, और जरूरत किस लिए है? क्योंकि जब तक तुमको यही नहीं मालूम कि इंडिविजुअल बिहेवियर लोगों का कैसा है, हाउ कैन यू थिंक अबाउट द नेशन, राइट? तुम नेशन के बारे में कैसे सोच सकते हो? अभी फॉर एग्जाम्पल तुम हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात करो, तो हमारे प्राइम हम सोचते हैं ना, ये कोविड-19 में इतना नुकसान हो रहा है, हमारा जॉब नहीं है, राइट? हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पेरेंट्स घर पे बैठे हैं, हमारा खर्चा तो रुक नहीं रहा है, तो हमें पैसा चाहिए। तो ऐसा इंडिविजुअली हर एक का हालत है, राइट? एवरीबॉडी, सबके घर में यही हालत है, सबके पेरेंट्स का जॉब डेंजर में है, प्रॉब्लम में है जॉब तो भी कम पैसा मिल रहा है, राइट? तो ऐसे टाइम पे इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब इंडिविजुअल बिहेवियर पता है, तभी हमारे नेशन के प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर से बोलकर इंडिविजुअली लोगों को किस तरह से हम हेल्प कर सकें, ये एक्शन लेंगे, राइट? सो व्हाट विल हैपन, अभी हमने देखा हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि हम इतने इतने क्रोर्स ऑफ रुपीस का सैंक्शन दे रहे हैं, ताकि डिफरेंट योजना, अंडर द डिफरेंट योजना, अलग अलग स्कीम्स के अंडर हम ये पैसा जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, राइट? अभी हम देखते हैं राशन दुकान में फ्री का राशन दे रहे हैं वो लोग। ऑफ कोर्स डोंट टेक इट वेरी पर्सनल, क्योंकि महाराष्ट्र में द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट वेरी स्मूथ एज इन सम अदर स्टेट्स, बट देन हर जगह अलग अलग सिनेरियो है, तो हम कमेंट नहीं कर सकते, राइट? सो पर हमने महाराष्ट्र में भी देखा है, जब से लॉकडाउन हुआ है, राइट, हमको राशन दुकान में सामान मिलता है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स, तो राशन दुकान में सामान इंडिविजुअली मुझे मिलेगा या तुम्हें मिलेगा, राइट? बट ये डिसीजन कहाँ से आया? ये नेशन वाइड हमने देखा कि सबको प्रॉब्लम है, सबका इनकम बंद हो गया है, इसीलिए ये मैक्रो इकोनॉमिक व्यू से देखा हुआ प्रॉब्लम का डिसीजन लिया गया है, जो माइक्रो लेवल पे लोगों को चीजें डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, राइट? माइक्रो लेवल पे चीजों चीजों को अवेलेबल करवाया है हमने। सो इसीलिए माइक्रो एंड मैक्रो ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जब तक तुमको माइक्रो लेवल पे प्रॉब्लम क्या है मालूम नहीं है, तो मैक्रो लेवल पे उसका डिसीजन नहीं ले सकते हो, और चीजें माइक्रो लेवल पे ही काम नहीं कर सकती, क्योंकि वी आर हैविंग सो मेनी एसोसिएशंस विद डिफरेंट कंट्रीज, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इसीलिए हमको ना दूसरे कंट्रीज के साथ में जुड़े रहना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स, राइट? सो अभी जो आगे का है, मैं तुमको उसका एक ओवरव्यू बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, तो वी विल नॉट बी एबल टू कवर अप टुडे। तो जो चीज आज कवर अप नहीं होगी वो कल के सेशन में हम कवर अप करेंगे। बट आई होप जितनी चीजें अभी तुमको सिखाई गई हैं, सो ये सब तुम याद रखोगे, बिकॉज ये तुम्हारा बेस है। what is economics, what is scarcity, what is choice, what is opportunity cost, what is positive, what is normative, ये सब concepts जो है ना, ये तुम्हारे basics हैं। once you understand the meaning of this, you can understand any theory, कोई भी theory उठा के पढ़ो, तुमको सबका जो gist है वो समझ में आ जाएगा। अभी क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग कल के सेशन में, स्कोप पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में कल क्या पढ़ने वाले हम लोग? कल मैक्रो भी थोड़ा सा पढ़ेंगे एंड माइक्रो भी, ओके? बचा हुआ माइक्रो एंड टुमारो मैक्रो ऑल्सो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक चीजें जो हमें समझनी है वो है तीन। वन इज कमोडिटी प्राइसिंग, जो भी कमोडिटीज है ना, जो भी चीजें हैं अवेलेबल, उनकी प्राइसिंग कैसी होती है? तो उनकी प्राइसिंग दो चीजों पर डिपेंड होती है। पहली है डिमांड थियोरी और दूसरी है सप्लाई थियोरी, राइट? तो डिमांड कितना है लोगों का उस कमोडिटी के लिए, और एट द सेम टाइम उस कमोडिटी का सप्लाई कितना है, इस पे डिपेंड होगा कि उस कमोडिटी की प्राइसिंग कैसे होने वाली है। तो ये तुमने पढ़ा भी होगा 12th स्टैंडर्ड में, लाइक when the demand becomes equal to the supply, at that point there's an equilibrium and the price of the commodity and the quantity to be demanded and supplied is fixed, right? तो वो हम कल भी करेंगे, देखेंगे थोड़ा सा। अपार्ट फ्रॉम दैट, फैक्टर प्राइसिंग थियोरी इज इंपॉर्टेंट। अब ये फैक्टर्स क्या होता है, हमने जो पढ़ा ना, एलोकेशन, वही एलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस। तो अभी तुमको आई होप वो कनेक्ट करते आ रहा है कि डेफिनेशन में दिया हुआ हर एक वर्ड यहाँ पर उसके ऊपर एक थियोरी है, क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। सी एलोकेशन इज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या फैक्टर्स हम यूज करते हैं, कौन सी चीजें हम यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए?
So what is important, what we are using is the factors such as land, labor, capital and entrepreneur, right? तो क्योंकि हम लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर यूज करते हैं, इसीलिए हमको उन्हें कुछ रेम्यूनरेशन भी देना पड़ता है. वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट आल्सो सर्टेन थिंग्स एंड दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज रिटन हियर. सी यू कैन रीड इट. दैट इज रेंट, wage, interest and profit, right? So now in that case, rent is given to the labor, wage is given, rent is given to the land, okay, wage is given to the labor, interest is given to the capital and profit is given to the entrepreneur, right? Coming to the third aspect of microeconomics, and that is the theory of economic welfare. क्योंकि हम जितनी भी चीजें करते हैं ना, उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स के साथ डील करते हैं, बिकॉज वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बींग्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो एंड टू कीप इन माइंड कि हम किसी का नुकसान कभी ना करें. वी शुड नेवर ट्राई टू हार्म एनीवन. ठीक है ना, चीजें कम हैं, चीजें स्केर्स है, फाइन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे का छीन के खुद खुश हो जाएं, राइट? क्योंकि अगर हम दूसरे से छीन कर आज खुश हो जाएंगे, सो टुमारो हमसे ऊपर वाला, हमसे ऊपर इन द सेंस समवन हु इज वेल ऑफ will take things from us also and be happy. So that should not happen at any cost. इसीलिए it's important to understand कि what should be produced, how it is to be produced, when it is to be produced, and for whom it is to be produced. It is very, very important to keep all these four things in mind when you have to talk about welfare. कि जब हमें ये आइडिया होगा कि हमें क्या बनाना है, कितने लोगों के लिए बनाना है और किस किस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे. बट अगर हम ये क्वेश्चंस का आंसर किए बगैर ही प्रोडक्शन में उतर जाएंगे, तो हो सकता है हम किसी एक का बेनिफिट करने के लिए किसी और का लॉस कर रहे हैं. सो दैट शुड नेवर हैपन एंड दिस इज व्हाट इज द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, it is very important to understand that we are following these rules of microeconomics. Okay, so I will then try to conclude over here, because tomorrow's session mein what we are going to do, I'll just show you. Tomorrow's session mein we are going to start with macroeconomics. ठीक है, तो आज के सेशन में जितनी चीजें पढ़ाई गई हैं, बताई गई हैं, अगर आपको उसमें से कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आज का जो एक फीडबैक फॉर्म और एक टेस्ट उसी में होगा. ठीक है, कुछ आज जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर ही टेस्ट होगा, उसी के ऊपर क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, वो आपको आंसर करने हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक वहां पर ऑप्शन दिया जाएगा कि एनी कंसेप्ट विच यू वांट मी टू एक्सप्लेन, जो आपको लगता है डिफिकल्ट है, जो हमने इस सिलेबस में भी नहीं डाला है आपके हिसाब से, तो आप वहां पर रिकमेंडेशन दे सकते हो. तो कल के सेशन में वो भी चीजें हम अपने प्रेजेंटेशन में डाल के आपको एक्सप्लेन करेंगे. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. हाँ, द टू वीडियोज दैट वी हैड here which we couldn't play here, I'll share it on your group so that you can just go through. इतना कुछ ये नहीं है, बट एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है उस वीडियोस में. Over here and we'll meet tomorrow at the same time. Okay, 11 o'clock tomorrow also we'll keep this session. Okay, and students, please fill the feedback form because it's important for both the days to fill the form. And earlier accounts का भी जिसने नहीं भरा होगा तो भर दो, because चारों दिन के forms भरना compulsory है if you wish to get the certificate. Grishma ma'am, I think we can conclude. हाँ मैम. Okay sir, okay. मुंबई में बारिश कितनी खौफनाक है, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं. मुंबई की मैक्सिमम सड़कों पर, ज्यादा से ज्यादा सड़कों पर पानी था, कई सड़कें डूब चुके हैं. साथ ही साथ कई इलाकों में नॉन स्टॉप बारिश चल, एक सड़क से हर जगह पानी था. वही बात हाँ,
हाँ हाँ, क्या वो